Good evening, dear students. In this video, we are going to discuss about the cross product. So let us see that vector cross product. So first of all, we have taken two vectors, A vector and B vectors, and these vectors are non-zero vectors. So what is cross product exactly? So cross product is the perpendicular vector which is perpendicular on the both vectors, right? So this vector is defined as the A cross B. This vector is defined as A cross B. तो क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both A vector and B vector. And cross product is defined as magnitude of A, magnitude of B, sine theta. Theta you can see this is theta angle into n cap. n cap का मतलब है यूनिट वेक्टर. तो मैं यहाँ पे ये जो A क्रॉस B को ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो वेक्टर लेना है वो यूनिट वेक्टर लेना है, राइट? So A cross B equals to magnitude of A, magnitude of B, sine theta into n cap, right? Or we can say n cap is a unit vector. N cap is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. Perpendicular to both A vector and B vector, right? Now, how we can find the cross product? So first of all, suppose we have given two vectors. A vector, suppose I have given 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, and B vector is given minus 2 I cap minus j cap plus k cap. तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? A क्रॉस B equals to determinant of I j k, then its component -2 -1 1. तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. I cap into it is 2 plus 3 minus j cap into 1 plus 6 and k cap into -1 plus 4. So this is your cross product 5 I cap minus 7 j cap plus 3 k cap. तो इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की. सपोज अगर हमें यही दो वेक्टर दिए गए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. सपोज ये आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये फिर हम अगर इसको भी ज्वाइन कर देते हैं तो ट्राइंगल फॉर्म होती है. तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है by using the A vector and B vector, तो its formula is half into magnitude of A cross B. तो जो भी हमारा A क्रॉस B होगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे. सिमिलरली अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो इट्स फॉर्मूला विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. समटाइम्स हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन होते हैं. जैसे किसी भी पैरेललोग्राम का आपको डायगोनल गिवन है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज आपको यहाँ पर D1 एंड D2, दीज आर द टू डायगोनल्स आपको गिवन है, तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे. हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? सो हाफ इंटू diagonals, cross product of diagonals with magnitude. So this is the area of parallelogram by using the diagonals. Now let us see few observations for cross product. If A cross B are the like vectors, like vectors का मतलब होता है the vectors which have same direction, like these are the like vectors. तो जब भी आपके like vectors होंगे your cross product will be 0, क्योंकि वो लाइक वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, वो लाइक वेक्टर्स कोलिनियर भी हो सकते हैं. पैरेलल एंड कोलिनियर में हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वेक्टर्स में. सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे वेक्टर्स अनलाइक है, इफ द वेक्टर्स आर अनलाइक, मतलब वेक्टर्स आपके opposite direction में है like this, then also the cross product will be 0. Sometimes we can get a simple question on like and unlike vectors. वैसे तो नहीं आएगा but basic concepts हैं. तो like vectors में हम लेंगे theta is 0 degree और unlike में हम लेंगे theta is 180 degree. Unlike का मतलब है कि इस तरह से आपके दो वेक्टर्स हैं opposite direction में और आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है, राइट? नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कि जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होती. वेरी इंपॉर्टेंट. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. मतलब
cross product is not commutative. Cross product is not commutative. So you have to learn the name of the property. The name of the property is commutative, right? तो अगर मुझे a cross b in terms of b cross a लिखना है तो I will put the negative sign. वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे. फोर्थ कॉन्सेप्ट था कि हमारा अगर आपको पता ही है कि आई जे के ये जो हमारे एक्सेस हैं, जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, राइट? तो अगर हम आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देखो एक वेक्टर है आई कैप, दूसरा वेक्टर भी आपका आई कैप है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कुछ होनी ही नहीं है, है ना? एंगल तो कोई बन नहीं रहा. वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर एक कॉमन परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो. तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो. सो जे क्रॉस जे इज ऑल्सो जीरो एंड के क्रॉस के इज ऑल्सो जीरो. इन सेम वे अगर आप आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो यू विल गेट द के कैप. और अगर आप इसको क्लॉकवाइज चेक करते हो, मतलब जे एंड आई की क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो यू विल गेट द माइनस के कैप. आई जे, जे और के की क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेगी आई कैप, और इसी का अगर आप क्लॉकवाइज ले लेते हो इट इज माइनस आई कैप. एंड द लास्ट इज आई जे जे के, और लास्ट क्या बनेगा आपका आई जे जे के एंड के आई. के एंड आई, के एंड आई की क्रॉस प्रोडक्ट होगी जे कैप, और इसी को अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो इट इज माइनस जे कैप. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी कैन यूज इन सम क्वेश्चंस. नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए क्रॉस बी प्लस सी. तो योर आंसर विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. दैट्स योर आंसर, राइट? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन दीज प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑन अदर कॉन्सेप्ट्स. So we are to find the value of this I dot j cross k, j dot I cross k and k dot I cross j. तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि I cross j किसके इक्वल होगा, k के. I j, j और k किसके इक्वल होगा, I cap. And k and I will be equals to I j k. k and I will be equals to j cap. ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो j क्रॉस i आप देख लो किसके इक्वल है, I कैप के. देन I क्रॉस j, I क्रॉस j यहाँ पे उल्टा क्लॉकवाइज हो गया ना, I क्रॉस j, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस j कैप. एंड k क्रॉस k डॉट I क्रॉस j फर्स्ट वाला हो गया तो ये k कैप है. तो I डॉट I आपको पता ही है डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1. j डॉट j इज माइनस 1, k डॉट k इज अगेन माइनस 1. तो 1 and 1 will be cancelled. Your answer is 1. Next students, we have another question. If r vector equals to xi plus yj plus zk, find the value of r cross I डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई. ठीक है, तो क्वेश्चन देख के डरना तो बिल्कुल भी नहीं है. देखो आपको सब कुछ गिवन है, तो जो हमारा गिवन है हम उसको जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है हम उसको लिख लेते हैं. आर वेक्टर क्रॉस आई ये हमने फाइंड करना है, डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई. ठीक है, देखिए आर वेक्टर की हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो इसकी हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है आई के साथ. ठीक है, तो ये हमारी ब्रैकेट होगी. सेकेंड इज, फिर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे. तो आप देख सकते हैं मैंने आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है. अब बेटा अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी की थी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास कुछ प्लस और माइनस के साथ है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है और मुझे आई क्रॉस के साथ लेनी है प्रोडक्ट, तो वी कैन टेक, राइट? तो कैसे लेंगे, एक्स तो एक कॉन्स्टेंट है, आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा, प्लस वाई इज कॉन्स्टेंट, जे कैप क्रॉस आई कैप, एंड प्लस जेड कॉमन, के क्रॉस आई कैप. ठीक है, और डॉट आ जाएगा, इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, एक्स इंटू आई क्रॉस जे प्लस वाई इंटू जे क्रॉस जे प्लस जेड इंटू के क्रॉस जे. ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा प्लस एक्स वाई. तो आई क्रॉस आई यू नो दैट इट इज जीरो, तो एक्स इंटू जीरो प्लस जे और आई देखो जे और आई मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका आंसर आएगा माइनस के, और के और आई का आंसर आ जाएगा जे. थोड़ा ध्यान से करेंगे, डॉट, एक तो ये ब्रैकेट थी और साथ में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट,
I cross j, ij is k cap, ठीक है, अनदर ब्रैकेट प्लस j क्रॉस j आपका हो जाएगा 0 और k और j हो जाएगा z इंटू माइनस आई प्लस एक्स वाई। तो इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप डॉट एक्स के कैप माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स वाई। तो अब हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, k को k से मल्टीप्लाई करना है और j को j के साथ और i को i के साथ। तो देखो माइनस वाई इंटू एक्स, के और k मल्टीप्लाई हो गए, j तो है ही नहीं यहाँ पर, z के साथ क्या आ जाएगा 0 और इधर i भी नहीं है, 0 के साथ क्या आ जाएगा माइनस z प्लस एक्स वाई। सो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट a क्रॉस b स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट a, not magnitude sorry, determinant of a dot a dot b, a dot b, b dot b। तो हमें ये शो करना है। तो अब देखो, अब हमें पता है कि a क्रॉस b किसके इक्वल है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, राइट। अब मुझे a क्रॉस b का लेना है स्केयर, a क्रॉस b का स्केयर लेना है, तो मीन्स a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्केयर बन गया ये, ठीक है। हमने पहले डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, उसके बाद ये स्केयर बन गया। अब हम ये स्केयर सेपरेट कर लेते हैं, a मैग्नीट्यूड स्केयर b मैग्नीट्यूड स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। तो अब मुझे डॉट में लेके जाना है अपने क्वेश्चन को। डॉट में क्वेश्चन कैसे लेके जाओगे आप, आपको डॉट तब बनेगा जब आपका साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो मैंने साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये बन गया ए डॉट बी का स्केयर। नाउ दिस इज ए डॉट बी स्क्वायर। तो अब बेटा क्या करना है, आपको बहुत बार बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, ए का मतलब क्या है ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर का मतलब क्या है बी डॉट बी, और इधर हो जाएगा आपका ए डॉट बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखते हैं, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, अगर दोनों आंसर सेम आ गए तो हमें फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। तो ये देखो बिल्कुल सेम आ गया ना, डिटर्मिनेंट का मतलब है हमें जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, राइट। To see the next question, show that a minus b cross a plus b equals to twice of a cross b। तो पहले हम गिवन ले लेते हैं। अब देखो करना क्या बेटा, इसको सिंपली हम इस तरह से, जैसे हम मल्टीप्लाई काइंड ऑफ करते हैं हम वैसे करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, a क्रॉस a प्लस बी माइनस b क्रॉस a प्लस बी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अब आपको बताइए क्रॉस अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ए क्रॉस बी पता है ना, आपको बताया था इसी वीडियो में, मैंने बताया हुआ प्रॉपर्टी है आपकी। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, तो दैट्स योर आंसर, ठीक है। सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द थ्री वेक्टर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी। तो हम इसको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही आप सारा लिख लोगे। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिख ली। अब यहाँ पे जो बी क्रॉस ए है उसको हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ताकि ये चीजें कैंसिल हो जाए। ए क्रॉस सी को एज इट इज लिख लो, बी क्रॉस सी, और इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और सी क्रॉस बी को हम लिखेंगे माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। तो एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड आउट, योर आंसर इज 0 वेक्टर।